Welcome for our present discussion regarding entrepreneurship. We have started first chapter of class 12. Chapter name was Sensing Entrepreneurial Opportunities. This is my second episode. In the first episode, we have discussed the entrepreneur and employees, their differences. Who is entrepreneur, who is employee, what is the reward of the entrepreneur, what is the reward of the employee. Those much differences we have discussed in the first episode. In the second episode, I will try to discuss before you that regarding business opportunity. If an entrepreneur conceives any idea and he likes to give the practical shape of his idea, so he should think about the target in future. If that idea cannot bring the profit in his future, then he should not give the practical shape of that business. And whatever he is getting the idea or conceiving the idea from the society, that means he is getting the opportunity, he is taking the opportunity from the society, from the surroundings. That opportunity is the discussion matter here. Suppose I am moving by the road and just I have seen few plastic bottles are at the roadside, and seeing that, one idea is clicked in my mind that भाई ये सब प्लास्टिक का बोतल तो गिरा पड़ा हुआ रहता है, इसका तो कोई यूज नहीं हो रहा है, ऐसे गंदा भी हो रहा है, और इसको लेके तो कुछ कर सकते हैं हम लोग. कोई पेंटिंग टीचर को आप देखोगे कि प्लास्टिक का बोतल जो वेस्टिंग है उसको लेके उसको साफ करके उसके ऊपर कुछ बना के उसको शो पीस करके रखते हैं. अब ऐसे शो पीस जब मार्केट में बेचा जाता है तब हम लोग घर सजाने के लिए उसको खरीद के लाते हैं. तो सपोज ऐसे कोई आइडिया दिमाग में आ गया और हम उस प्रकार का कोई एक फैक्ट्री बनाने का सोच लिया और बिजनेस फॉर्म कर लिए. टारगेट है प्रॉफिट. टारगेट होगा कि आज जो हम बनाने जा रहे हैं वो आइटम का सोसाइटी में यानी कि मार्केट में यानी कि कस्टमर के पास उसका डिमांड क्या रहेगा, उसका यूटिलिटी क्या रहेगा, वो प्रोडक्ट कस्टमर को अट्रैक्ट करेगा कि नहीं, या कस्टमर हमारे प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करेगा कि नहीं. ऑल दिस थिंग्स आर द टू बी कंसिडर्ड बिफोर प्रोसेसिंग द एंटरप्रेन्योरशिप. Those factors, those are the elements of business opportunity. So come to the point here. What is business opportunity? It is an economic idea. Why it is the economic idea? As it is the topic is the business opportunity, that's why. Business opportunity. Whenever the business word is coming before you, we have read in class 11 already, there are objectives of business. Economic objective. Economic objective. What the target is to earn the profit. So economic idea, that opportunity must be the economic idea. So it is an economic idea which can be converted. ये जो आइडिया है ये आइडिया कन्वर्ट होना पड़ेगा किसमें, एक बिजनेस एंटरप्राइज में कन्वर्ट होना पड़ेगा, जो बिजनेस एंटरप्राइज से प्रॉफिट आएगा, दैट इज टू अर्न द प्रॉफिट. बिजनेस अपॉर्चुनिटी का 5 एलिमेंट है. देयर आर 5 एलिमेंट्स है. फर्स्ट एलिमेंट इज कमिंग एश्योर्ड मार्केट स्कोप. दैट इज getting the idea, whatever product or service we are going to produce, that is the entrepreneur is going to produce, that product or service must have the demand in the market, must have the demand in the market. That is the market scope. मार्केट में हमारा गुड्स का या प्रोडक्ट का या सर्विस का कितना स्कोप है, ये आगे चल के बढ़ेगा कि नहीं, मार्केट में
हमारा सामान बिकेगा कि नहीं। सेकेंड एलिमेंट, एन अट्रैक्टिव एंड एक्सेप्टेबल रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। दैट मीन्स हम जो आइडिया कॉन्सेप्ट किया उसके आधार पर जो प्रोडक्ट बना रहे, फैक्ट्री बनाए, उसके पीछे खर्चा हुआ है, इन्वेस्ट किया हम जो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो जितने लाख रुपए इन्वेस्ट किया, मेरे पास पैसा नहीं भी हो सकता है, आइडिया है। हम किसी एक फाइनेंसर के साथ बात नेगोशिएशन किया कि हमारे पास एक आइडिया है, इस तरीके से अगर फैक्ट्री बनाई जाए तो शायद इन फ्यूचर वी कैन अर्न द प्रॉफिट। तो वो फाइनेंसर अगर राजी हुआ तो हमारे साथ एक साथ कोलैबोरेशन में काम कर सकते हैं। फाइनेंस उनका है, आइडिया मेरा है, एक बिजनेस फॉर्म किया, 50-50 प्रॉफिट भाग होगा, जो भी एक आपस में डिसाइड होगा। दैट इज द प्रॉफिट शेयरिंग मैटर। बट व्हाट एवर प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी प्रोड्यूस्ड, उसके पीछे इन्वेस्टमेंट जो किया, वो इन्वेस्टमेंट से जो रिटर्न आएगा वो रिटर्न अट्रैक्टिव रिटर्न होना चाहिए, एक्सेप्टेबल रिटर्न होना चाहिए। तो इन्वेस्ट जो किया, इन्वेस्टमेंट का जो रेट ऑफ रिटर्न है वो रेट ऑफ रिटर्न एक एक्सेप्टेबल रेट ऑफ रिटर्न होना चाहिए। मान लीजिए 10 लाख रुपया इन्वेस्ट किया और साल के बाद 20,000 रुपया प्रॉफिट आ रहे, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। सो मोटा मोटी एक बिजनेस किस प्रकार के कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कितना हुआ, उसका क्या फर्स्ट ईयर में हो सकता है, फर्स्ट ईयर, 2 years, 3 years, नॉट मच प्रॉफिट, वेरी नैरो प्रॉफिट इज कमिंग, बट इट मे हैव द फ्यूचर टारगेट, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है, तो फिर उसमें रहेगा, धीरे धीरे वो प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। बट वन थिंग टू बी कीप इन माइंड दैट द इन्वेस्टमेंट के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ रिटर्न जो है, दैट इज द प्रॉफिट, उसका जो प्रॉफिट का रेट ऑफ रिटर्न वो एक्सेप्टेबल और अट्रैक्टिव होना चाहिए, तब जल्दी से वो बिजनेस स्टैंड अप करेगा मार्केट में। थर्ड एलिमेंट, प्रैक्टिकेबिलिटी ऑफ द आइडिया। हम जो आइडिया कुछ लिए हैं, जिस आइडिया से, मान लीजिए एक ऐसा आइडिया हम कर रहे हैं कि इस टाइप का बनाएंगे, इस टाइप का प्रोडक्ट बनाएंगे, जहाँ पे हमारा जो वर्कर्स काम करेगा वो वर्कर्स इंडियन पीपल नहीं हो सकता है, बाहर से आएगा, जहाँ से जिस प्रकार का एम्प्लॉयज के बारे में हम सोच रहे हैं, जिस देश का, वो देश से हमारा एम्प्लॉयज आ ही नहीं सकता, माने उठपटांग जो सोचते हैं, उस तरीके का सोच के कभी एंटरप्रेन्योर नहीं चल पाएगा। एंटरप्रेन्योर हैज टू थिंक इन ए प्रैक्टिकल वे कि हम ये टाइप का चीज बनाने जा रहे हैं, इस टाइप का सर्विस बनाने चाहिए, इस टाइप का प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं जिसका प्रैक्टिकेबिलिटी है, इसमें इतना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, ये इन्वेस्टमेंट का हमारे पास इतना अमाउंट है, इतना अमाउंट जुगाड़ हो जाएगा। यस, दैट इज कॉल्ड द प्रैक्टिकेबिलिटी। जमीन आसमान सोच के वो नहीं होगा। तो प्रैक्टिकेबिलिटी ऑफ द आइडिया, आइडिया का प्रैक्टिकलिटी होना चाहिए। Fourth element is coming of the business opportunity, competence of the entrepreneur to encash it. Competence मतलब efficiency, competency मतलब efficiency। एंटरप्रेन्योर जो पर्टिकुलर पर्सन है, वो एंटरप्रेन्योर मस्ट बी एफिशिएंट टू एनकैश इट। एनकैश मतलब जो प्रोडक्ट बना रहे या सर्विस बना रहे उसको सेल करेगा, एनकैश करेगा, आइडिया को एनकैश करेगा। आइडिया लेके सोचे हुए हैं, इन्वेस्ट कर दिया और सोच रहे काम नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, प्रॉफिट नहीं आएगा तो कहां से होगा। दैट आइडिया टू बी एनकैश, आइडिया को इन्वॉल्व करके, प्रैक्टिकल शेप देके, उसके पीछे इन्वेस्टमेंट करके, उसके लिए एम्प्लॉयज को लेके पॉजिटिव वे में काम करते हुए फ्यूचर में वो आइडिया क्या हो रहा है, जब प्रॉफिट आ रहे, दैट प्रॉफिट इज द एनकैशमेंट ऑफ द आइडिया, आइडिया का एनकैशमेंट हो रहा है। फिफ्थ नंबर एलिमेंट, पोटेंशियल ऑफ फ्यूचर ग्रोथ। जिस टाइप का आइडिया हमने कॉन्सेप्ट किए हैं, एक एंटरप्रेन्योर व्हाट एवर आइडिया ही विल कॉन्सेप्ट इन हिज माइंड, ही शुड थिंक दैट ये आइडिया के आधार पर जो प्रैक्टिकल शेप देने जा रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन का, जो प्रोडक्ट या सर्विस हम सोसाइटी में देंगे या प्रोडक्ट ऑफर करेंगे कस्टमर को या सर्विस प्रोवाइड करेंगे,
तो जो प्रॉफिट आएगा ये क्या 2-4 साल के लिए रहेगा कि इसका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है कि नहीं है, उसके बारे में भी उसको सोच लेना पड़ेगा. बिकॉज वॉट एवर द बिजनेसमैन विल फॉर्म ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ही विल नॉट थिंक फॉर 2-3 years he will do the business. If that business will have the future growth, that will be the better. So the entrepreneur should think about the potentiality of that idea, about the potentiality of that entrepreneurship idea, concept, whatever idea is concept, वो idea का potentiality कितना है कि future में growth हो सकता है वो organization. तो potentiality of the growth of idea is also the element of the business opportunity. So there are the 5 business opportunities elements are here. So you read, go through, and these are available in the books also. I follow personally for my own school students the Punam Gandhi entrepreneurship book. That's better. So these points are discussed there also. I have discussed. You follow my video and listen properly, and then go through the book, and I think you can give the answer of the questions. Okay, thank you very much.